Hello everyone, very good evening. Welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So thank you so much for joining us for today's session. I am Sampada representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today topic is audit features in Tally Prime. So before moving ahead to the topic, let's introductions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into software sales, services, solutions, and implementations and development. So first we deal with Tally Prime. Second, SAP Business One. Third is Bittrex 24, and fourth is Skill India. So now speakers are available here. So presentations will be done by Miss Anam and live demonstrations will done by Mrs. Diksha. And as usual, the over recap by Mr. Bhagwati Prasad Dandaria. So Anam and Diksha, are you here? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. And Bhagwati sir? Yeah, Sampada, I am available. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Welcome Anam and Diksha. So Anam, you will start the presentation. Yes, ma'am. Hello all. Very good evening to one and all present here. Myself, Miss Anam Sheikh, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So next slide, please. So coming towards our today's topic, on behalf of management and the entire team, I would like to welcome all the participants present here. So coming towards our today's most interesting topic, which is audit feature in Tally Prime. Basically, audit feature helps the auditor to track the changes that affect the integrity of transactions. Now let's see the introduction part of audit in Tally. Audit is an important function of any business organization. It denotes that the business has true and fair transaction during the year. Audit plays an important role in every business organization. As well as audit हमें business के annual true and fair transaction show करता है. Tally Prime has a feature Tally Audit, which enables the auditor to perform an audit or track changes that affect the integrity of a transaction, such as changes made to date, ledger master, and amount in the voucher are reflected in Tally Audit listing. Tally Prime में audit feature auditor को help करता है to perform an audit or auditors can track changes that affect the transactions. जैसे changes made in date या फिर voucher के amounts में और ledger master में जो भी changes होते हैं वो Tally audit listing के through reflect होंगे. Now let's see some interesting features of audit in Tally Prime. So next slide please. Okay. So no, previous slide only, sorry. Okay. Audit listing for voucher types. Audit statistics screen showing the audit statistic based on voucher type. The entered and altered vouchers are displayed in columnar format. Tally Prime में audit statistics screen आपको voucher types पर based audit statistics show करता है. Entered and altered voucher counts columnar format में display होते हैं. The next is set show count of modified, cancelled and deleted voucher to yes to display the modified, cancelled and deleted voucher. Count in columnar format. Once you switch from show count option to yes to display option, the counts of modified, cancelled and deleted voucher
will be displayed in columnar format. So next slide please. The next feature is Tally Audit Monthly Register. To view the various periodicity views for Tally Audit Monthly Register, press Ctrl+H, change view like daily, weekly, fortnightly, monthly, quarterly और half yearly. If आपको Tally Audit Monthly Register periodic wise देखना है, so click on Ctrl+H option and click on select from the listed views, that is daily, weekly, fortnightly, monthly, quarterly or half yearly. The next is you can display the details of a report in different views with additional details or for a specific period. You can also view other reports related to the current report. आप रिपोर्ट की डिटेल्स डिफरेंट व्यूज में डिस्प्ले कर सकते हैं with additional details for a specific period, as well as आप current report related other reports भी view कर सकते हैं. Audit listing for masters. You can do an audit for the masters created and maintained for your company. आपकी कंपनी में जो मास्टर्स क्रिएट एंड मेंटेन किए हुए हैं, you can do audit for this. The next is you can display the details of a report in different views with additional details or for a specific period. You can also view other reports related to the current report by Ctrl+H. आप रिपोर्ट की डिटेल्स स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिफरेंट व्यूज में डिस्प्ले कर सकते हैं. And with the help of Ctrl+H option, you can view other reports also related to the current report. And the next feature is audit listing for users. You can perform audit for different user in your company, as well as आप आपकी कंपनी में different users के audit perform भी कर सकते हैं. So this was all about theoretical part of audit features in Tally Prime. So now it's time for the live demonstration. So I request Miss Diksha to proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Thank you, Anam ma'am. It was a wonderful presentation, ma'am. Hello everyone. Good evening. My name is Diksha, representing of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Today we are learning Tally audit feature in Tally Prime. Let's start to our live demo. My screen is visible, Anna ma'am? Yes, Diksha. Yes. Okay. So जैसे कि एनम मैम ने बताया हुआ है कि ये जो टैली ऑडिट फीचर हम लोग देखने वाले हैं आज, तो इसके अंदर जो फीचर्स है वो एग्जैक्टली क्या है. तो जैसे कि मल्टीपल कंपनीज ऐसे हैं जिनके पास 2-3 ऑडिटर्स या फिर अकाउंटेंट्स है जो एंट्री पास करते हैं, एंट्री लेवल पे काम करते हैं, और उसको जस्टिफाई करने के लिए या फिर उसको क्रैक करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग ऑडिट करते हैं कि जैसे पता चल जाए कि ये एंट्री किसने किया हुआ है, इसको अल्टर, सेम एंट्री को अल्टर किसने किया हुआ है. तो वो फीचर आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. तो उसके लिए पहले तो एक पर्टिकुलर कंपनी मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है. टैली आप देख सकते हो ओपन है. इसके अंदर आप कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होना जरूरी है. अदरवाइज ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नहीं रहेगा तो आपके यूजर्स क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होगा. उसके लिए आपको कंपनी में जाना है, अल्ट के प्रेस करना है, अल्टर करना है कंपनी को. आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे एक यूजर क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि ए, और ये मेरा पासवर्ड है.
फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे यूजर क्रिएट करने के बाद पर्टिकुलर यूजर्स यानी अकाउंटेंट्स को उनके नाम से आप यूजर्स दे सकते हो, जिससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर अकाउंटेंट क्या काम कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आपको जाना है यूजर्स एंड पासवर्ड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक यूजर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ओनर लेवल पे मैंने उसका रोल जो दिया हुआ है ओनर लेवल पे दिया हुआ है, यूजर नेम भी दिया हुआ है, पासवर्ड भी मैंने वैसे ही दिया हुआ है, और ये कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे अभी मेरा 2 यूजर है टैली के अंदर। एक तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे मैंने किया हुआ है यूजर क्रिएट, और सेकंड मेरा रेगुलर यूजर जो अकाउंट संभालने वाला है या फिर एंट्री पास करने वाला है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एंट्री जो कंपनी ओपन है इसको बंद कर देते हैं और सेम कंपनी में ओपन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं जो रेगुलर यूजर है बी उसको मैं ओपन कर रही हूँ, राइट। अभी इसको ओपन करने के बाद एक पर्टिकुलर मुझे एंट्री पास करना है यहाँ पे। जैसे कि मैं वाउचर्स में जा रही हूँ, परचेस में 28 मार्च 2020 का एंट्री है ये, आकाश स्टील परचेस। कोई भी एक आइटम मैं डेमो के लिए ले रही हूँ, यहाँ पे केजीज बढ़ा देती हूँ 100 केजीज, राइट, और ये एंट्री में सेव कर देती हूँ। ओके, ये हो गया मेरा यूजर ने एंट्री किया हुआ है, राइट। ये एंट्री यूजर थ्रू हुआ है। इसको जब तक हम लोग ऑडिट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि ये एंट्री किसने किया हुआ है और इसको अल्टर कौन करने वाला है। तो ये चेक करने के लिए आपको आपका एडमिन लॉगिन होना जरूरी है। तो आप एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। अभी सिस्टम मेरे पास एक ही है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके वजह से कंपनी बंद करके मैं फिर से चालू कर रही हूँ, यस कर रही हूँ, और अभी मैं एडमिन से लॉगिन कर रही हूँ। एडमिन से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पर्टिकुलर एंट्री चेक करनी है या फिर ऑडिट करनी है, उसके कॉन्फ़िगरेशंस में बता रही हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट एंड देन टैली ऑडिट। टैली ऑडिट का ये जो फीचर है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे ही दिखता है। ओके, तो यहाँ पे टैली ऑडिट को क्लिक करने के बाद वाउचर टाइप, देन मेरा परचेस का एंट्री था, राइट। तो यहाँ पे मार्च का मेरा लास्ट एंट्री रहेगा, वही मुझे देखना है, लास्ट एंट्री। ओके, आकाश स्टील का ये मेरा एंट्री है, राइट, 100 रुपीज वाला। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और इसको ऑडिट करना है। ऑडिट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्सेप्ट वन और एक्सेप्ट ऑल। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे एंट्रीज दिन के होते हैं तो मैं एक्सेप्ट ऑल कर सकती हूँ। आइदर मुझे पर्टिकुलर एंट्री करना है तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी सिलेक्ट करूंगी स्पेस बार से और फिर इसको एक्सेप्ट वन कर रही हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो जो मेरा एंट्री था वो हट गया है, यहाँ से ये लिस्ट में से निकल गया है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो एंट्री मैंने किया हुआ है यूजर बी के थ्रू, उसको मुझे चेंज करना है क्योंकि समथिंग कुछ मिसिंग है या फिर कुछ चीजें गलत डाली हुई है। तो पहले तो डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डे बुक, राइट, ये 28 मार्च का मेरा ये एंट्री, राइट, 100 रुपीज वाला। यहाँ पे हम लोग चेंजेस करते हैं अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 100 रुपीज था, मैंने 1000 रुपीज डाल दिया और ये एंट्री मैंने जैसा था वैसा सेव कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट आपको देखना है उसके लिए शो एंटर्ड बाय एंड अल्टर्ड बाय, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यस होना जरूरी है। तो मैं ऑप्शन इसको यस किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, और इसको मैं सेव कर रही हूँ। आप यहाँ पे देखो जब भी मैंने एंटर्ड किया हुआ एंट्री है वो मेरा यूजर बी से है और अल्टर्ड जो किया हुआ है वो यूजर ए से है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल से है। और इसका जो आपका सिस्टम डेट रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा कि ये कब आपका एंट्री अल्टर्ड हुआ है। ओके, ये हो गया डिस्प्ले डे बुक पे आपको दिखेगा, राइट। और ये स्टैटिस्टिक्स जो देखना है इसको देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली, सेम प्रोसीजर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, टैली ऑडिट। टैली ऑडिट में जाएंगे तो यहाँ पे वाउचर टाइप, मास्टर एंड यूजर, ऐसे 3 आपको मेनू दिख रहे हैं। तो फिलहाल तो हम लोग
वाउचर टाइप देख रहे हैं, तो वाउचर टाइप में आप जाके यहाँ पे परचेस का एंट्री था, राइट, ओपन कर देंगे, एंटर कर देंगे। सेम जो एंट्री आपने किया हुआ है अल्टर वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है, जैसे कि आकाश स्टील हो गया। तो जो आपने डिस्प्ले डे बुक पे देखा था एग्जैक्टली सेम रिपोर्ट आप यहाँ पे देखने वाले हो, सेम रिपोर्ट आप यहाँ पे देखेंगे, राइट। इसके बाद ये सारे रिपोर्ट्स आपको नहीं देखने, पिछले रिपोर्ट्स नहीं देखने, आप यहाँ पे और एक चीज कर सकते हैं, टूडेज चेंजेस, ये देख सकते टूडेज चेंजेस। तो यहाँ पे जो फीचर दिया हुआ है अलग से, तो जो आज के दिन में चेंजेस हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखने मिल जाएंगे। पूरे रिपोर्ट्स आपको नहीं देखने, पर्टिकुलर डे के रिपोर्ट देखने, आप डेट वाइज भी डाल सकते हो, पीरियड डाल सकते हो, आइदर आपको फीचर दिया हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, मैं एस्केप कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे भी और एक फीचर दिया हुआ है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद शो काउंट ऑफ मॉडिफाई, कैंसल एंड डिलीट वाउचर। आप यहाँ पे एक फॉर्मेट देख लीजिए, ये स्क्रीन जो दिख रहा है एंटर और अल्टर का दिख रहा है, यहाँ पे F12 करने के बाद ये जो फीचर है इसको मैं यस कर रही हूँ, तो ब्रीफ हो जाता है ये स्क्रीन, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कौन सा एंट्री मेरा डिलीट किया गया है या फिर कैंसिल किया गया है या फिर मॉडिफाई किया गया है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ये स्क्रीन पे, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे दिखने मिल जाएगा। सेम कंट्रोल एच, जैसे कि मैडम ने बताया, एनो मैम ने, कि यहाँ पे कंट्रोल एच करने के बाद आपको बाइफर्केशन मिल जाता है। जैसे कि मास्टर वाइज चाहिए तो आप मास्टर वाइज ले सकते हैं, आइदर ऑडिट स्टैटिस्टिक देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोगों ने चेंज किया, कंट्रोल एच किया, तो यहाँ पे आपको यूजर लेवल दिख रहा है, राइट। ये जो यूजर लेवल है, ये यूजर लेवल थ्रू आपने जो भी एडिटिंग किया रहेगा या फिर अल्टर किया रहेगा, आपका यूजर रहेगा, सॉरी आपका मास्टर रहेगा या फिर वाउचर रहेगा, वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे क्या एडिट हुआ है या फिर क्या एंटर हुआ है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो पहले तो मेरे सारे वाउचर्स आपको दिखने वाले, जितने भी आज के दिन में मेरे कंपनी के अंदर वाउचर्स बने हुए हैं, तो वो सारे लिस्ट आपको पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं। उसके बाद एंटर्ड में आप देखेंगे तो जितने मेरे एंट्रीज पास हुई है वो पर्टिकुलर वाउचर के एंट्रीज यहाँ पे आपको दिखेंगे, राइट। फिर आप देखोगे अल्टर्ड, अल्टर्ड में आपको दिखेगी 2 एंट्रीज मेरी अल्टर हुए, सेम रिपोर्ट आपको एंटर करना है, सेम रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखने मिल जाएगा। तो आपको ये मंथ वाइज देखना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो ये जो एंट्री है हम लोगों ने अभी रिपोर्ट देखा, एग्जैक्टली सेम रिपोर्ट आप मास्टर लेवल देख सकते हो, यूजर लेवल देख सकते हो और वाउचर लेवल भी देख सकते हो। तो जो भी एंट्री अभी हम लोगों ने पास किया और उसको अल्टर किया वो यहाँ पे दिखना चालू हो गया है। ओके, जस्ट ये हो गया वाउचर टाइप। वाउचर टाइप जैसे कि वाउचर के अंदर जो भी एंट्रीज हम लोगों ने पास किया हुआ है या फिर उसको अल्टर किया हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हम लोगों को दिख रहा है। ओके, सेम अभी मास्टर लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया पर्टिकुलर एंट्री है जिसके अंदर आपने कोई मास्टर डाला हुआ है, एबीसी मास्टर करके आपने डाला हुआ है, कंपनी का नाम डाला हुआ है, उसके अंदर एक तो कंपनी का नाम तो एग्जैक्टली चेंज नहीं होता है पर कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एड्रेस डिटेल्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो आप एंट्री लेवल पे चेंज करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे दिखने मिल जाएगा। तो वो कैसे देखना है वो देखते हैं। मास्टर्स में मैं जाती हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल तो एंट्री यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि मास्टर वाइज आप देखेंगे तो कोई यहाँ पे चेंजेस हुए नहीं है, पर आज के दिन के मास्टर्स के चेंजेस आपको देखने हैं तो उसको आपको 2 days चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी मेरा चेंज हुआ है तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, ये हो गया मास्टर लेवल। एंट्री के अंदर जो भी मास्टर आप डालते हो उसके अंदर जो भी चेंजेस होगा पर्टिकुलर मास्टर के अंदर अल्टर होगा तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे एंट्री लेवल पे दिखेगा। ओके, सेम एज इट इज यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर एंट्री को सिलेक्ट करते हो,
एक्सेप्ट वन करते हो, ऑडिट करते हो, एक्सेप्ट वन या एक्सेप्ट ऑल करते हो, तो ये हो गया ऑडिट। तो उसको ऑडिट करने के बाद आपका ये एंट्री आपको मास्टर लेवल पे भी दिखेगा। ओके, सेम चेंज व्यू, ये बैकडेटेड है, आपका पुराना एंट्री आपको देखना रहेगा, तो ये बैकडेटेड ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और थर्ड ऑप्शन जो है वो यूजर वाइज है। यहाँ पे आप थर्ड मेनू देखेंगे यूजर्स, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है वाउचर लेवल पे कि जैसे कि यूजर्स पे आप जाओगे, जितने आपके यूजर्स है सारे लिस्ट आपको यहाँ पे दिखने मिल जाएंगे। और जिन्होंने जितने भी यूजर्स है उन्होंने एंट्री की रहेगी, एंटर्ड की रहेगी या फिर अल्टर्ड किया रहेगा, तो वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने मिल जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने मॉडिफाई को ऑन किया हुआ है। यहाँ पे कंट्रोल एच, तो जैसे कि कंट्रोल एच करने के बाद चेंज व्यू, वाउचर टाइप वाइज ऑडिट स्टैटिस्टिक देखना है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइदर कंट्रोल एच करने के बाद आपको यूजर वाइज देखना है तो आप यूजर वाइज भी देख सकते हैं। ये हो गए चेंजेस, जो कॉन्फ़िगरेशंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। ठीक है, सेम एज इट इज, सेम प्रोसीजर। मेनू आपको अलग दिया हुआ है, यूजर वाइज देखना है तो, या फिर वाउचर वाइज देखना है तो, मास्टर वाइज देखना है तो, पर आप जब भी एंटर करेंगे तो उसके अंदर जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है, वो सारे सेम है। तो जैसे कि एंट्री आप ओपन करते हो आपको वाउचर्स दिखेंगे। अभी मैं यूजर वाइज हूँ तो यूजर ने जितने भी एंट्रीज की हुए उसके वाउचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। और ये जो वाउचर्स है वो सारे आपको टोटल कितने एंटर हुए हैं एंट्रीज वो दिखाएंगे, और कौन से अल्टर्ड हुए हैं उनके यहाँ से वो बताएंगे। ओके, तो सेम प्रोसीजर, एंटर करेंगे, मार्च के एंट्रीज आप देखेंगे, सारे एंट्रीज यहाँ पे दिख रही है, सारी जो एंट्रीज आपने पहले पुरानी की हुई वो, और आज की नई एंट्री जो हुई है वो, जो एंटर जो हुई है और आपके यहाँ से अल्टर जो हुई है वो एंट्रीज यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। ये हो गया आपका एंट्री लेवल आपको कैसे देखना है। तो पहले तो प्रोसीजर आप समझ के ले लीजिए कि जैसे कि आप कोई भी एंट्री, आपके यूजर्स रहेंगे जो एंट्री पास कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, उसका ऑडिट होना कंपलसरी है। ऑडिट का मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ ऑडिट कैसे करना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, एंड देन टैली ऑडिट फीचर। टैली ऑडिट फीचर के अंदर आप वाउचर टाइप में जाएंगे, आपके जितने वाउचर्स है वो आप सिलेक्ट करेंगे, उसको आप एक्सेप्ट ऑल कर सकते हैं। आइदर पर्टिकुलर वाउचर आपको सिलेक्ट करना है तो उसको स्पेस बार से सिलेक्ट करके एक्सेप्ट वन कर सकते हो। ये ऑडिट का आपका प्रोसीजर है। ये ऑडिट होने के बाद कोई पर्टिकुलर यूजर ने या फिर एडमिन लेवल ने उसको एडिट किया, एंट्री को, वही एंट्री को एडिट किया, तो आपका वो एंट्री आपको बताएगा कि किसने एडिट किया और कब एडिट किया। ओके, संपदा मैम, एनो मैम, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये हो गया ब्रीफली प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। Yes, thank you, Diksha and Anam. It was a nice presentation and knowledge sharing session. So now time is overview. So Bhagwati sir, over to you. Yeah, thank you, Sampada, and thank you, team. So, good evening, everyone. Myself is Bhagwati Dhandaria. So, today's session is audit feature of the Tally Prime. Mostly हमने देखा है normally transaction and everything is going on smooth. लोग कर पा रहे हैं, लेकिन क्या वो ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है? क्या उस ट्रांजैक्शन सही हुए हैं? क्या वो ट्रांजैक्शन में कोई एरर नहीं है? उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए बहुत सी बड़ी कंपनियों में इंटरनल ऑडिटर भी होते हैं, उनके सुपरवाइजर्स भी होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, और फाइनली ऑडिट करने के लिए उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की ये डिमांड थी कि टैली में ऐसा, ये हमारी जो अकाउंटिंग एंट्री हो रही है, हमारी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, उसको ट्रैक कैसे रख सकते हैं, और हम कैसे ये समझ पाएंगे कि हमने किसका ऑडिट किया और किसका नहीं किया है, और कौन से ट्रांजैक्शन किसने इंटर्ड किए हैं, किसने अल्टर्ड किए हैं, वेरियस टाइप ऑफ द थिंग्स रिपोर्ट्स हमें चाहिए होती है।
तो उसको कैसे कवर किया जाए इन टैली प्राइम में। तो इसे ऑन योर डिमांड टॉपिक्स की आप लोगों की तरफ से जो डिमांड हमें आती है उसके बेस पे हम आपको टॉपिक्स लेते हैं। तो जहां पर हमने देखा कि बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहे हैं टैली में, दे आर मेंटेनिंग वन सेपरेट एक्सेल एंड डॉक्यूमेंट्स कि कौन से डेट तक क्या हो गया है, किसने क्या किया है, कौन सा एक्सेप्शन है, वो सभी चीजों को अलग से एक्सेल डॉक्यूमेंट में मैनेज करते हैं। फिर वो अपने कस्टमर्स के साथ अपनी जो कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं उनके साथ शेयर करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में उसको फाइनलाइजेशन करते हैं। लेकिन इतने जो स्मूथली ट्रैक रखना चाहिए जो ऑडिट के फीचर्स अगर टैली के अंदर ही मिल जाते हैं तो दे कैन ट्रैक एंड प्रॉपरली कि कहाँ पर हमने क्या ऑडिट किया है, कौन से वाउचर ऑडिट हो गए, ऑडिट के बाद में कौन सा वाउचर अल्टर्ड हुआ है, तो वो सभी चीज़ों को हम ट्रैक रख पाएं, जिसके लिए आपका ये ऑडिट फीचर टैली में है जो काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी आपको ऑडिट करने में आसानी देगा। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो ऑपरेटर लेवल लोग हैं, जूनियर लेवल लोग हैं जो ट्रांजेक्शन करते हैं ओनली, उनको मॉनिटर करने में, उनके ट्रांजेक्शन को चेक करने में काफ़ी आपको ईजी हो जाएगा, जिससे आप स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। साथ साथ आप अपने कंप्लाइंस को लाइक TDS GST की रिपोर्ट्स या PF PSIC की रिपोर्ट्स, वो सभी रिपोर्ट्स को बहुत ही स्मूथ ढंग से आप फाइल कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक बार ऑडिट कर लिया उसके बाद में आप आराम से फाइल करें। तो इससे आपका ये ट्रैकिंग पूरा आसान हो जाता है और इससे आपका टाइम बचता है। इससे आपकी सबसे बड़ी चीज़, आपके जो भी डॉक्यूमेंट जाते हैं, कहीं भी आप गवर्नमेंट कंप्लाइंस में आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो या फाइलिंग कर रहे हो, वो ऑथेंटिकेट होते हैं ऑलरेडी, तो आपको कोई भी पेनाल्टी एंड फ्यूचर रेक्टिफिकेशन की पोजीशन नहीं आती है। इसके साथ साथ आप अपने एम्प्लॉय को भी देख पाते हो कि कौन सा एम्प्लॉय मेरा प्रॉपर ट्रांजेक्शन नहीं पास करता है, तो आप उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे आपका ट्रांजेक्शन बहुत स्मूथ हो सकता है। क्योंकि कोई भी अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री जैसे बिग सब्जेक्ट की अगर एक बार आपने ट्रांजेक्शन कर लिया और आपने अपने कस्टमर के साथ शेयर कर दिया, तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंट इम्पैक्ट, क्योंकि बाद में वो चीज़ों को फिर से रेक्टिफाई करना, फिर कस्टमर्स को कन्विंस करना, इज अ बिग चैलेंज ऑफ द एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कशन किया और हमने एक्सपीरियंस किया है। तो ये जो ऑडिट फीचर है, इससे आपका पूरा अकाउंटिंग इन्वेंटरी प्रोसेसेस पूरा स्मूथ मेंटेन हो सकता है, वेरीफाइड हो सकता है, ऑथेंटिकेट हो सकता है, और आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए तो काफ़ी इजी हो जाता है ऑडिट फीचर, जहाँ पर वो ऑडिट करने में उनको काफ़ी फैसिलिटीज हो जाती है। इसके साथ साथ वो डेट वाइज फिल्टर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द अमाउंट वाइज फिल्टर, कि कैश ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर अगर हुए हैं तो वो एक्सेप्शन रिपोर्ट, वेरियस टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स इज ऑल्सो अवेलेबल, जो कि हम आपको कभी भी अब किसी को भी अगर इंडिविजुअली वो सभी चीज़ों को अगर देखना हो तो वी कैन ऑल्सो अरेंज अ सेपरेट सेशन फॉर यू, कि और डेप्थ में हम कैसे इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, कैसे डीप तरीके से हम ऑडिट को हम स्मूथ हम कैसे कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। तो ये सभी चीज़ें हमने जो आपको आज दिखाया, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी अगर चैलेंजेस आते हैं तो यू कैन कनेक्ट विथ योर अकाउंट मैनेजर, जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे राजलक्ष्मी सॉल्यूशन से। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और भी टाइप का डिस्ट्रक्शन या क्वेश्चन या कोई टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो आप, मेरा नंबर भी आपके चैटबॉट में है, जूम के चैटबॉट में है, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम जितने भी सेशन कर रहे हैं वो सभी सेशंस हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग है, काफ़ी डिटेल एंड ब्रीफ के साथ है। आपको कोई भी टैली सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वीडियो देखिए जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, जिसमें आप उस पर्टिकुलर फीचर को यूज कर पाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और स्मूथली उससे बेनिफिट ले पाएंगे, आप अपनी टाइम को सेविंग कर पाएंगे। और यूट्यूब चैनल पर वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए या लर्निंग करने के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट आपका नहीं जाता है, और आप अपनी फ्लेक्सी टाइम के हिसाब से कभी भी 24/7 में आप उसको देख पाते हैं और उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि यू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, सो यू विल गेट द बेनिफिट in terms of the learning and knowledge. So this is one thing, and normally in every months we are running some
ऑफर्स फॉर द कस्टमर बेनिफिट्स। तो इस मंथ में जो टैली ऑन क्लाउड, जो आज की डेट में हर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, लोग अपने टैली को 24/7 यूज करना चाहते हैं, मल्टी लोकेशन यूज करना चाहते हैं, जिसके ऊपर काफी अच्छा एक बेस्ट ऑफर हमारी कंपनी अभी चला रही है जो 30 जून तक है। आप एक बार उसका डेमो के लिए हमें आप बात कर सकते हैं, आप उसका डेमो देखिए और कैसे टैली ऑन क्लाउड आपको यूटिलाइज हो सकता है, आपके लाइफ को इजी कर सकता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और आप उसके प्राइजेस क्या हैं, वो सभी चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। क्योंकि देयर इज अ बिग ऑफर लाइक 12 मंथ में 18 मंथ फ्री, so it's a big offer nearby 50%, so you can get the benefit of this and various type of the offers, various types of the advantage, various type of the product are also in our organization। so आप हमसे कनेक्ट कीजिए जिससे आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्मूथली रन कर सकें और ईज टू यूज कर सकें, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करना चाहते हैं और हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। That's it from my side. It's over to you, Sampada. Thank you. Thank you, sir, for your valuable time. So this session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our YouTube and social media channels, and be connected to our key account managers for any support and any requirement. So thank you so much for your joining today. Thank you, Anam and Diksha. So see you in the next webinar. Thank you. So we are now wind up the session.